Good everyone. Today we'll be continuing our discussion further with solutions chapter. आज हम Van't Hoff factor के बारे में बात करेंगे. So Van't Hoff factor is a very important topic. Kindly listen to it very carefully. So let us start with Van't Hoff factor. Generally it is represented by I, small I, Van't Hoff factor. So let us try to understand Van't Hoff factor क्या होता है. So when we were discussing or when we were starting with colligative properties, कौन कौन सी colligative properties के बारे में हमने पढ़ा? Lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point और osmotic pressure. ये सारी colligative properties we have discussed. So when we were starting with colligative properties, जब हम start कर रहे थे, so I have told you some assumptions. ये colligative properties का जो study की जाती है, ये कुछ assumptions के अंडर में की जाती है that these colligative properties are defined for very dilute solution. For very dilute solution बहुत dilute होना चाहिए. No association of solute and no dissociation of solute. मतलब क्या है इसका? When we were starting with colligative properties, I have told you that these properties, colligative properties, depend only on the number of particles present in the solution. कितने पार्टिकल एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है? 100 पार्टिकल हैं, 200 पार्टिकल हैं, 400 पार्टिकल हैं. इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑन किस तरह के पार्टिकल हैं. एक सॉल्यूट डिसॉल्व है, बी सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, सी सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नंबर पे डिपेंड करती हैं colligative properties. And these colligative properties are studied for very dilute solution. Solution should be very dilute, no dissociation of solute. Suppose whatever solute molecule you are dissolving in the solution, they should not combine among themselves to form bigger molecules, and there should be no dissociation of solute. So solute का dissociation भी नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए. Association का means जुड़ना, dissociation का means टूटना. That means the solute should not combine among themselves to form bigger molecules. Neither solute molecule should dissociate to form smaller units. Let us understand this dissociation and association. इसका मतलब देखते हैं. So suppose आपने there is a solution in which solute is A solute इस solution में है. Solvent कुछ भी हो, solute A है, dilute solution है. And आपने solute का कितने particles लिए? Suppose I have taken 100 particles. अब 100 particles आप count करके नहीं लेंगे, but just to give you an idea I am taking this example. Suppose आपने A के 100 particles लिए. अब A कुछ ऐसा solute है जो कि smaller units में टूट सकता है. It can dissociate. Suppose for example NaCl की बात की जाए. In case of NaCl, when you will dissolve this in water, NaCl will dissociate into ions Na++ Cl-. So one unit of NaCl will give you 2 ions. So one unit breaks down to produce 2 units. एक यूनिट टूट के 2 यूनिट बनाती है. So this is known as dissociation. इसी को टूटना बोलते हैं. So A is solute which can dissociate. A कुछ इस तरह का solute है which can dissociate. Dissociate means it will break into smaller components or ions, जो भी कह सकते हैं. So A dissociate into 2 parts. B और C में डिसोसिएट कर सकता है. सो आपने जो
पार्टिकल्स लिए थे वो तो 100 लिए थे, लेकिन क्या हुए, वो ए के पार्टिकल्स टूट गए, ए के पार्टिकल्स टूट गए बी और सी में। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी मोर देन 100, मोर देन 100। ये जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, आपने तो 100 लिए थे, बट वो 100 में टूट गए, बी और सी में ए टूट गया, सो पार्टिकल्स विल बिकम मोर देन 100। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो आपने फॉर्मूले कैलकुलेट किए थे, जैसे डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, वो एज्यूम करके किए थे कि ये सॉल्यूट पार्टिकल्स टूट या जुड़ नहीं रहे, टूट नहीं रहे, मतलब जितना आपने लिया, वॉट एवर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स यू हैव टेकन, दे विल रिमेन सेम इन द सॉल्यूशन, दे विल नाइदर associate nor dissociate, they will neither associate nor dissociate, ना ही वो टूटेंगे ना ही वो जुड़ेंगे। सो आपने तो 100 पार्टिकल सोच करके फॉर्मूला लगाया टू कैलकुलेट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, बट एक्चुअल में सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं वो 100 से ज्यादा हैं। आपका फॉर्मूला जो रिजल्ट देगा दैट विल नॉट बी करेक्ट, दैट विल नॉट बी करेक्ट, क्योंकि एक्चुअल में सॉल्यूशन में पार्टिकल्स कितने हैं? 100 से ज्यादा। आपने कितना सोचा? 100, तो आपका फॉर्मूला 100 मान के कैलकुलेट करेगा या रिजल्ट देगा, बट देयर इज एक्चुअल मोर देन 100 पार्टिकल्स। सो दिस हैपेंड, यही चीज हुई व्हेन द रिजल्ट फ्रॉम द फॉर्मूले, व्हेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वेर कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूले। तो जो रिजल्ट आया, इट वाज कंपेयर्ड विद द एक्चुअल रिजल्ट obtained during practical observation in the lab, and both did not match, both did not match. Why? Because जो assumptions we have taken that solute particles are neither associating nor dissociating, वो follow नहीं हो रहा था। solute particles were breaking down or associating in the solution. So ये जो कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी थी, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड वो वाली प्रॉपर्टी थी विच यू हैव ऑब्टेन्ड यूजिंग फॉर्मूला, एंड ऑब्जर्व्ड वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी विच यू हैव डिराइव्ड और ऑब्जर्व्ड इन द practically in the laboratory. So in order to make them equal, in order to make both those results equal, a factor was introduced which was known as Van 't Hoff factor. So Van 't Hoff factor का इंट्रोडक्शन इसी के लिए हुआ था, ताकि जो एक्चुअल या जो फॉर्मूले से रिजल्ट मिल रहा है आपको, मैथमेटिकल फॉर्मूले से, और जो लैब में रिजल्ट मिल रहा है आपको, दोनों बराबर किए जा सके, बोथ कैन बी इक्वेटेड। रिजल्ट अबाउट व्हाट? रिजल्ट अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उसी तरह अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स एसोसिएट कर जाएंगे, तो एसोसिएट कर जाएंगे मतलब छोटे छोटे सॉल्यूट पार्टिकल्स, कई छोटे सॉल्यूट पार्टिकल्स मिलके बड़े सॉल्यूट पार्टिकल बना देंगे। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव टेकन 100 पार्ट्स ऑफ ए, 100 पार्टिकल्स ऑफ ए लिया आपने, और उसमें से कुछ एक खुद कंबाइन करके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना रहे, मीन्स 100 ए जो लिया वो आपस में ही कंबाइन करके कुछ नए बिगर यूनिट बना दे रहे हैं। सो जो आपका 100 पार्टिकल्स का एजम्पशन था वो गलत हो जाएगा, पार्टिकल्स 100 से कम हो जाएंगे, क्योंकि ए कुछ खुद में ही कंबाइन कर गए। सो इन दिस केस एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों ही केसेस में रिजल्ट डिफर कर जाएगा। सो जो वैन 't Hoff फैक्टर का इंट्रोडक्शन था वो किस लिए था? ताकि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर की जा सके। सो इस फॉर्मूले में जो डेल्टा टीबी था, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या था? केबी इंटू एम, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन ये फॉर्मूला प्रैक्टिकल रिजल्ट से जो ऑब्जर्वेशन मिल रहा था उसको और इससे जो रिजल्ट मिल रहा था दोनों मैच नहीं कर रहे थे, बोथ द रिजल्ट्स आर नॉट मैचिंग। सो वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ फैक्टर और करेक्शन फैक्टर, जिसको वैन 't Hoff फैक्टर बोला गया। सो करेक्शन फैक्टर था आई, वैन 't Hoff फैक्टर। सो द फॉर्मूला विच इज
which takes into account, we can say which takes into account association or dissociation is delta TB is equal to I into KB into M, elevation in boiling point. उसी तरह से delta TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, I KF into M. यहाँ भी एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया सो दैट आप एसोसिएशन और डिसोसिएशन को अकाउंट कर सके. उसी तरह से पाई इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू CRT था, यहाँ भी हम I इंट्रोड्यूस कर देंगे. सो दिस इज द वैन टॉप फैक्टर जो इंट्रोड्यूस किया गया सो दैट ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो फॉर्मूला से मिल रहा है और जो लैब में मिल रहा है दोनों मैच कराए जा सके. So we will discuss about Van't Hoff factor more in the next class. Today we'll keep it till here only. Thank you so much.